Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Without wasting time, let us jump into the text as it is a lengthy text. You already know, we have already discussed each and everything. So let us continue. And then at night she would lie sleepless in her room, the pretty room that had been reconverted from her nursery. She watched the moonlight drift patterns across the yellow bedspread and the breeze blow the curtains that her mother had made by hand, because that was the only way she could be sure of an absolute match. ये breeze blow है, BLOW. You will breeze will blow the curtains that are. Yellow is such a difficult color to match, she had explained around a mouthful of pins. As this text is copied from the internet and internet sources have been used, you will find some spelling mistakes. Kindly consult your textbook in order to remove such mistakes. So at night she would lie sleeplessly. We are talking about Minta here. Minta जो थी वो उदास थी और वो उस रूम में रहती थी जो कि पहले उसकी नर्सरी थी. नर्सरी जो बेबी रूम होता है, वो देख रही थी मून लाइट में जो रोशनी से, वो पर्दे के अंदर से रोशनी आ रही थी और वो पैटर्न्स के ऊपर पड़ रही थी जो कि उस पर्दे के ऊपर बने हुए थे. क्योंकि उसके बेड स्प्रेड का कलर येलो था तो उसकी माँ ने खसूसन पर्दे भी येलो लगाए थे. यहाँ पे इमेजरी और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है. लास्ट में जो 3 लाइन्स है वो उसकी मदर का डायलॉग है जब वो मुंह में पिंस डाल के येलो पर्दों को जोड़ रही थी. येलो इज सच अ डिफिकल्ट कलर टू मैच. सो this room was decorated by Minta's mother. And in the dark hours of the night, Minta had known it wasn't a nightmare, it was true. It was true. One windy November, she hurried home from school and found her mother in the yard wrecking leaves. She wore a bright kerchief over her head and she had Minta's old polo coat belted around her. She looked young and gay and carefree and her eyes were shining. और एक दिन मिंटा रात को यही सोचती रहती थी और ये उसे पता था कि ये एक नाइटमेयर नहीं है, बुरा ख्वाब नहीं है, ये सच है. और ये सच था. वन विंडी नवंबर, 1 नवंबर के दिन जब वो स्कूल से वापस आई तो उसने अपनी माँ को देखा जो कि गार्डन के अंदर लीव्स को इकट्ठा कर रही थी. और लीव्स को इकट्ठा करते करते उसने मिंटा को देखा. मिंटा ने अपनी माँ को देखा. मिंटा ने देखा कि उसकी माँ की आंखों के नीचे काले वो जो सर्कल्स हैं वो बनना शुरू हो गए हैं और जो चीक्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही ब्राइट है, यानी उनमें पेलनेस आ गई है. बीमारी जो है वो अपना असर दिखा रही है. वो यंग दिख रही थी, खुश दिख रही थी, केयरफ्री, यानी जैसे लापरवाह हो. और आंखों में एक ख़ास कशिश थी, शाइन थी. लेकिन वी नो कि वो बीमार थी. हाय, शी वेव द रैक इनवाइटिंगली. चेंज योर क्लॉथ्स एंड कम हेल्प. विल हैव अ स्मच पार्टी. स्मच कहते हैं जब आप ढेर बनाते हैं पत्तों का. स्मज एक तो ये होता है कि दाग होते हैं, जो कपड़ों पे दाग होता है. यहाँ पे स्मच पार्टी से मुराद ऐसी पार्टी है कि जब आप कूड़ा क्रिकेट या इस तरह के पत्ते इकट्ठे करें और छोटी सी आग लगाएं, उसको कहते हैं स्मच पार्टी. इन द एली मिंटा स्टॉप्ड एंड लीन्ड ऑन द गेट. शी saw with a new awareness that there were dark circles under her mother's eyes and the flags of colors in her cheeks were too bright. But she managed a chuckle. I wish you could see yourself, Mom. For 2 cents, I'll get my camera and take a picture of you sharing into the house. So मिंटा अपनी माँ उसे कहती कि आओ मेरे साथ काम करो, हम स्मच पार्टी करेंगे. मिंटा ने अपनी माँ की आंखें देखी, उनके चीक्स देखे, लेकिन वो फिर भी हंस पड़ी क्योंकि उसने माँ को एहसास नहीं दिलाना था कि वो बीमार है. लेकिन वो फिर भी माँ से कहती है कि माँ आप काश आप अपने आप को देख सकती कि फॉर 2 cents आई गेट माई कैमरा एंड टेक अ पिक्चर ऑफ यू, कि मैं 2 सेंट्स के बदले में ना आपकी तस्वीर बनाऊंगी. वो घर के अंदर भागी और अंदर से got her camera and they took a whole roll of pictures. Good, the mother said complacently. Now we can show them to your father the next time he accuses me of being a silly sit by the fire. They piled the leaves into a huge damp stake with the help of a half a dozen neighborhood children. It wouldn't burn properly but gave out with clouds of thick black wonderfully pungent smoke. उन्होंने फ़ौरन अपना कैमरा वो लेके आई. माँ के साथ उसने तस्वीरें बनाई और माँ ने बड़े लापरवाही के अंदाज में, कैजुअल अंदाज में कहा कि चलो अब ये तुम्हारे बाप को मैं तस्वीरें दिखाऊंगी जो मुझे हर वक्त कहता है कि मैं सैली हूँ, यानी लेज़ी हूँ और सिट बाय द फायर, बस हर वक्त आग के पास बैठी रहती हूँ, मुझे हर वक्त ठंड लगती है. उन्होंने वो पत्ते इकट्ठे किए और नेबरहुड के बाकी बच्चे भी इकट्ठे हुए. उन्होंने वो आग लगाई, लेकिन उन्हें पता था चूँकि वो पत्ते गीले थे कि आग प्रॉपर नहीं लगेगी, सिर्फ धुआं ही देंगे. लेकिन वो धुएं की जो स्मेल थी वो पंजेंट थी, अच्छी थी, वंडरफुल भी थी, यानी बुरी नहीं महसूस हो रही थी.
Her mother was tired that night. She lay on the Devonport and made out her Christmas card list while Minta and her father watched the wrestling matches. It was like 1,000 other such evenings, but in some unaccountable way it was different. Because it's the last time, Minta told herself, the last time we will rack the leaves and make a bonfire in the alley. The last time I'll snap a picture of her with her arms around the Kelly kids. The last time she got up quickly and went out into the kitchen and so उसकी माँ उस दिन थकी हुई थी। वो जो है डेवनपोर्ट राइटिंग डेस्क को कहता है जिस पे ज़रा स्लोपिंग सरफेस होती है, लिखाई में आसानी हो। और वो क्रिसमस कार्ड की लिस्ट बना रही थी और मिंटा और उसके फादर रेसलिंग मैचेस देख रहे थे। सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन फ़ज़ा में एक अजीब एक वो जो था ना, ये जो नाइट थी ये अनअकाउंटेबल वे, जिसका एहसास नहीं हो सकता था कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाए। क्योंकि मिंटा सोच रही थी कि ये लास्ट टाइम है कि वो मदर के साथ लीव्स इकट्ठे करेगी, लास्ट टाइम है कि वो बॉन फायर करेगी, लास्ट टाइम है कि उन्होंने पिक्चर बनाई, लास्ट टाइम यही चीज़ कि आखिरी बार आखिरी बार आखिरी बार आखिरी बार। वो फ़ौरन से उठी और किचन में गई एंड मेड पॉपकॉर्न इन द इलेक्ट्रिक पॉपर, ब्रिंगिंग बाउल टू हर मदर फर्स्ट, रिमेंबरिंग जस्ट द वे शी लाइक्ड इट, salt and not too much butter. But that night she wakened in the chilly darkness of her room and began to cry softly, her head buried in the curve of her arm. At first it helped, loosening the tight bands about her heart, washing away the fear and the loneliness. But when she tried to stop, she found that she couldn't. Great racking sobs shook her until she could no longer smother them against her pillow. वो फ़ौरन से उठी, उसने पॉपकॉर्न बनाया और अपनी माँ के लिए स्पेशली पहले लेके गई और वो वाले पॉपकॉर्न बनाए जिसमें ज़्यादा साल्ट हो लेकिन बटर ज़्यादा ना हो। वो अचानक से रात को उस वक्त जब सोई अपने रूम में तो अचानक उसे रोना आ गया। वो पहले आहिस्ता से हंसी, उसने अपना मुंह छुपाया हुआ था अपने बाजुओं के अंदर। एट फर्स्ट इट हेल्प, यहाँ पे पहले उसको काफ़ी हेल्प हुई क्योंकि जो हार्ट के ऊपर बोझ था वो ख़त्म हो रहा था, वो जो फियर था, वो लोनलीनेस थी, उसमें कमी आ रही थी। बट जब उसने रोकने की कोशिश की अपने आप को तो वो रुक ना सकी और फिर अचानक से उसकी चीखें निकलना शुरू हो गई। और वो जो है ना, उसने पिलो में मुंह दिया हुआ था लेकिन वो पिलो जो है उसकी रोने को रोक नहीं रहा था। एंड देन द लाइट वाज ऑन एंड हर मदर वाज देयर बेंडिंग ओवर हर फेस, concerned, her voice soothing, darling, what is it? Wake up, baby, you are having a bad dream. No, it isn't a dream, Minta choked. It's true, it's true. The thin hand kept smoothing back her hair, tumbled hair, and her mother went on talking in the tone she had always used to confirm a much smaller Minta. She was aware that her father had come to the doorway. और फिर लाइट वो एकदम ऑन हुई और उसकी माँ पहुँच गई। वो अपनी बेटी के चेहरे के पास गई और उसे बड़े चेहरे पे उसकी परेशानी थी और बड़ी ही प्यारी आवाज़ में, जिस तरीके से जैसे बेबी मिंटा को वो करती थी, सुलाती थी या तसल्ली देती थी कि डार्लिंग आपको क्या हुआ है, रिलैक्स हो जाओ, आपको कोई बुरा ख्वाब देखा है? नहीं जी, बुरा ख्वाब नहीं है। मिंटा बोली ये सच है, ये सच है। और लाजमी सी बात है, मिंटा किसके बारे में सोच रही है? आप समझ सकते हैं कि वो अपनी मदर के बारे में ही सोच रही है। उसकी माँ बार बार उसके बालों को सीधा करती, उसके साथ आराम से, बड़े कंफर्ट से, बड़े रिलैक्स अंदाज में उसको सूद कर रही थी। और मिंटा को पता था कि फादर जो हैं वो डोरवे में खड़े हैं। ही सेड नथिंग, जस्ट स्टूड देयर वाचिंग देम व्हाइल मिंटा sobbed diminished into hiccupy sighs. Her mother pulled the blanket up over Minta's shoulder and gave her a little spank. The ideal golliwogs at your age, she said reprovingly. Want me to leave the light on in case your spook come back? Minta shook her head, blinking against the tears that crowded against her eyelids. Even managing a wobbly smile, she never cried again. उसके बाप ने कुछ नहीं कहा। वो वहाँ पे खड़े थे और वो तब तक खड़े रहे कि जब मिंटा की सॉब्स जो है ना वो बिल्कुल हिकअपी साइज, जब हिकअप्स यानी हिचकी में तब्दील हो गए। माँ ने उसके ऊपर वो शोल्डर पे वो किया और हल्की सी चिपत रसीद की मिंटा को। ये दायली गॉलीवॉक्स ये एक्सप्रेशन का मतलब है कि ऐसी उम्र में तुम्हें ऐसी मार पड़नी चाहिए। शी सेड रिप्रूविंगली, जैसे उसे डांट रही हो। और फिर वो कहती है कि क्या लाइट ऑन छोड़ दूं ताकि कहीं तुम फिर ना डर जाओ? स्पूक, गोस्ट यानी कोई भूत प्रेत उसको कहते हैं। मिंटा ने अपना सर हिलाया और ब्लिंक किया। उसकी आइज़ में अभी भी आईलेट्स जो थे उनमें आंसू थे। एंड शी इवन मैनेज्ड अ वॉबली स्माइल, वॉबली यानी शेकी। शी नेवर क्राइड अगेन, वो फिर दोबारा से नहीं रोई।
Not even when the ambulance came a week later to take her mother to the hospital, not even when she was standing beside her mother's high white hospital bed, holding her hand tightly, forcing herself to chatter of inconsequential things. Be sure that your father takes his vitamin pills, won't you, Minta? He's so careless, Alner. I am there to keep an eye on him. I'll watch him like a beagle, Minta promised lightly. Now you behave yourself and get out here in a hurry. You hear? Not even at the funeral. अब मिंटा जो है वो बिल्कुल भी नहीं रोई, यानी ना उस वक्त रोई जब उसकी मदर उसे छोड़ के बेडरूम में सोने की चली गई, नहीं ना उस वक्त रोई जब हॉस्पिटल की कॉल आई और इसको लेके गए मिंटा की माँ को हॉस्पिटल के लिए, उस वक्त भी नहीं रोई। और फिर मिंटा जब हॉस्पिटल में थी, अपनी माँ के पास खड़ी थी वो, तो इनकॉन्सिक्वेंशल उसने माँ का हाथ पकड़ा हुआ था और ऐसी बातों का जिक्र कर रही थी जो कि जिनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जिनकी कोई अहमियत नहीं। और माँ जो है वो उसे डायरेक्शंस दे रही थी कि बिल्कुल तुमने अपने बाप का ख्याल रखना है ताकि वो अपने वाइटामिन्स लें, तुमने बिल्कुल वो जो है ना केयरलेस नहीं होना, और कभी भी वो जो है ना बड़े लापरवाह हैं, और जब भी मैं उनके ऊपर मतलब नज़र ना रखूं तो वो मिस करते हैं अपनी वाइटामिन के पिल्स। आई वॉच हिम लाइक अ बीगल, बीगल एक कुत्ते की नस्ल का नाम है, एक ब्रीड है, उसको कहते हैं। ठीक है, सो आप देख लीजिए, मीनिंग्स में ये लिखा होगा, डिटेल दी होगी। और मिंटा ने प्रॉमिस किया और फिर मिंटा वहाँ से चली गई। नॉट इवन एट द फ्यूनरल, वो फ्यूनरल में भी नहीं रोई। The friends and relatives came and went, and it was as if she stood on the sidelines watching Minta, who talked with them and answered their questions, as if her heart were encased in it that kept breaking. She went to the encased in a shell that kept breaking. She went to the school and came home afterwards to the empty house. She tried to do things her mother had done, but even with the help of well-meaning friends and neighbors, it was hard. She tried not to hate the people who urged her to cry. You'll feel better, dear, her Aunt Grace had insisted, and then had lifted her handkerchief to her eyes and walked away when Minta had only stared at her with chilling indifference. She overheard people talking about her mother. She never knew, did she? They asked. And always Minta father answered, no, she never knew. Even at the very last, when she was waiting for the ambulance to come, she looked around the bedroom and said, I must get these curtains done up before Christmas. Mintia knew that her father was worried about her and she was sorry. But if it was as if there was a wall between them, a wall that she was too tired to surmount. अच्छा, फ्यूनरल पे लोग आ रहे थे, बिंटा से सवालात पूछ रहे थे बार बार। वो जो है ना, उसका दिल जो है ना वो बार बार जैसे था जैसे किसी शेल में हो और टूट रहा हो। वो घर से स्कूल गई, स्कूल से घर आई, घर खाली था, और वो इस तरह काम करना चाह रही थी जैसे कि उसकी माँ करती थी, और नेबर्स भी थे और रिलेटिव्स भी थे जो कि मतलब हेल्प कर रहे थे, लेकिन साथ साथ जो है ना वो उनसे नफ़रत नहीं करना चाह रही थी, जो क्योंकि वो बार बार उसे दोबारा उदास कर देते थे। आंट ग्रेस आई, यू विल फील बेटर डियर, फिर उसकी माँ की याद दिलाना, और आंट ग्रेस ने वो बात की कि तुम ठीक हो जाओगी, और आंखों के आगे से आंसू साफ़ किए हैंडकरशीफ से और वहाँ से चल पड़ी। और मिंटा ने जो है ना बस उसकी तरफ घूरी डाली थी, चिलिंग इंडिफरेंस की, जैसे उसे कोई परवाह ना हो। फिर लोगों के सवालात कि क्या उसे पता था, क्या मिंटा की माँ को पता था कि उसके साथ ये होने वाला है, और उसके फादर कहते हैं कि नहीं जी, उसे ये नहीं पता था। और फिर वो बताता है कि इवन जब एम्बुलेंस आई तो मिंटा की माँ ये कह रही थी कि मैंने पर्दे चेंज करने हैं क्रिसमस से पहले। मिंटा को पता था कि उसके फादर उसके लिए परेशान है और वो बहुत सॉरी थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि जैसे उनके दरमियान एक गैप आ गया और दीवार आ गई। और ऐसी दीवार, क्योंकि कम्युनिकेशन बाप बेटी में नहीं हो रहा था, दोनों उदास थे, और एक ऐसी दीवार थी कि जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकती थी, जिसके ऊपर वो चढ़ नहीं सकती थी कि दूसरी तरफ उतर जाए। One night he came to the door of her room where she was studying. Wonder if you'd like to go through these clothes before your Aunt Grace takes them to the church bazaar. He began haltingly, and then she looked up at him, not understanding. He went on gently, your mother clothes. We thought someone might as well get them. फिर एक दिन वो कमरे में आए, उससे वो स्टडी कर रही थी और कहा कि
अपनी माँ के कपड़ों को देख लेना। पहले तो उसे समझ नहीं आई और फिर बाद में समझ आई कि हाँ जी अपनी माँ के कपड़ों को देख लेना बिफोर, ताकि आंट ग्रेस ऐसा ना हो कि उसे चर्च बाज़ार में किसी को दे आए, क्योंकि फौतगी के जो कपड़े होते हैं वो तकसीम हो जाते हैं, और इसी तरह क्रिश्चियंस में भी है कि वो फौतगी के कपड़े लोगों को दे देते हैं। तो मिंटा को कहते हैं कि देख लो ऐसे ना आंट ग्रेस जो है ना चर्च के बाज़ार में उनको दे आएँ। She stood up and closed the book and went past him without another word, but she closed the door behind her when she went into her mother's room. There were some fruit boxes by the closet door, and Minta vaguely remembered that the woman from the bazaar committee had called several times. वो गई बगैर कोई लफ्ज़ अदा की, अपने पीछे वो माँ के कमरे में गई और माँ के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक कर दिया। वो अंदर गई, वहाँ पे सूट बॉक्सेस थे, क्लोजेट डोर था, और मिंटा को याद आया कि जो चर्च बाज़ार कमेटी की खातून थी उसने काफ़ी दफ़ा कॉल की थी। Her hand felt slightly unsteady as she pulled open the top dresser drawer and looked down at the stacks of clean handkerchiefs, the stockings in their quilted satin case, the gloves folded into tissue wrappings. Can't do it, she told herself, but she got a box and started putting the things into it, trying not to look at them, trying to forget how delighted her mother had been with the pale green slip, trying not to remember. उसने आराम से ड्रार खोले और ड्रार के अंदर जितनी चीज़ें थी उनको देखा कि कैसे उसके मदर ने बड़ी नफासत के साथ सारे सैटिन के और ये जो ग्लव्स थे और कैसे फोल्ड किए हुए थे, कैसी तरतीब से रखे हुए थे। उसने फिर भी एक हिम्मत की, पहले तो उसे लगा कि वो नहीं कर सकती, फिर उसने हिम्मत की, बॉक्स निकाला और बॉक्स में चीज़ें डालना शुरू कर दी, इससे बग़ैर उनकी तरफ ज़्यादा गौर किए हुए, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ को हर एक चीज़ कैसे कैसे उसने ख़रीदी थी और पसंद थी, ख़ुसूसन वो जो ग्रीन कलर के स्लिप थी, पेल ग्रीन स्लिप थी, ट्राइंग नॉट टू रिमेंबर, ताकि उसे याद ना आए। Once she hesitated and almost lifted a soft wool sweater from the pile that was growing into the suit box. She had borrowed it so often that her mother used to complain that she felt like a criminal every time she borrowed it back again. She didn't mean it though. She loved having Minta borrow her things. Minta put the sweater with other things and closed the box firmly. Now, the things in the closet. फिर वो बड़े आराम से देखा कि उसने एक सॉफ्ट वूल का स्वेटर जो है जो कि सूट बॉक्स में पड़ा हुआ था, ये सॉफ्ट वूल का जो स्वेटर था उसने कई दफ़ा अपनी माँ से लिया था और माँ ने जो है उसे दिया था, लेकिन मिंटा से वो वापस ले लेती थी। ये नहीं कि माँ को ये नहीं पसंद था कि मिंटा जो है उसकी चीज़ें ना ले, लेकिन मिंटा ने वो स्वेटर और बाकी चीज़ें वो बॉक्स में रखी एंड फिर वो क्लोजेट की तरफ गई। ओपनिंग द डोर वाज ऑलमोस्ट लाइक फीलिंग हर मदर इन द रूम बिसाइड हर। अ फेंट परफ्यूम clung to the most of her garments, the house coat, the volley robe, the tan polo coat, the scarlet jacket, her new blue wool with the pegged top skirt. Minta started folding the things with almost frantic haste, stuffing them in the boxing, cramming the lids on, and then starting on another box. At the very back of the closet were the two pieces of matched luggage that had been her mother's last birthday gift from her father. They were heavy when she tried to move them, too heavy. उसने दरवाज़ा खोला, क्लोजेट के अंदर एक परफ्यूम की स्मेल थी जो कि उसकी माँ की परफ्यूम थी। वो गारमेंट्स में हाउस कोट था, वोली रोब था, पोलो कोट था, स्कारलेट जैकेट थी, हर न्यू ब्लू विद द पैक टॉप स्कर्ट था, नए ड्रेसेस थे। फ़ौरन से जल्दी से फ्रंटिक केस, जैसे कि बहुत जल्दी में वो बंदा, जैसे कि जल्दी में कहीं जाना हो, उसने बॉक्स को क्रैम करना शुरू किया, चीज़ों को भरना शुरू किया, उन पर लिड्स डालना शुरू की। आखिर में बस एक लगेज के दो सूट केसेस से रह गए जो कि लास्ट टाइम फादर ने उसको बर्थडे गिफ्ट दिए थे मिंटा की माँ को, और वो बहुत हैवी थे, टू हैवी। She brought them out into the room and put them side by side on her mother's bed. Her breath caught in her throat and she opened them. Dozens and dozens of boxes, all tied with bright red ribbon, the gift tags written out in her mother's careful script, gaily colored Christmas stickers, sprigs of holly to Minta from mother and dad, or Grace from Marty to John, from Mary to the Kelly Gremlins, from Aunts Mary or Uncle Art from the Holly family. So you knew, Minta whispered the words. You knew all the time. She looked down in the surprise as a hot tear dropped on her hand and she dashed it away almost impatient. सो मिंटा ने वो सूटकेस निकाले और जैसे ही सूटकेस खोला उसमें रेड रिबन्स के गिफ्ट्स पड़े हुए थे, इतने सारे गिफ्ट्स थे, हर एक फैमिली के लिए गिफ्ट लिया हुआ था, हर एक खाली फैमिली के लिए, जो जो पड़ोसी सब के लिए गिफ्ट थे, क्रिसमस गिफ्ट थे। इससे मिंटा को पता चला कि उससे
पता था मिंटा की माँ को कि वो अब नहीं रहेंगी. यू न्यू ऑल द टाइम. शी लुक डाउन इन सरप्राइज एज अ हार्ट डियर. और उसकी आंखों से एक आंसू निकला, लेकिन फ़ौरन से बेसब्री से उसने वो आंसू हटा दिया. शी picked up another package and read the tag, to Minta from mother with love. Without opening it, she knew that it was a picture frame, and she remembered the way she had teased her mother to have a good photograph taken. The only one I have of you looks like a fugitive from a chain gang, she had pointed out. I can very well go away to school next year with that. She put the package back in the suitcase with all the others and carried the cases back in the closet. Poor dad, she thought. और उसने वो फिर वो इधर उधर पैकेज उठाया और टैग रीड किया जिसके ऊपर लिखा हुआ था फॉर मिंटा, टू मिंटा फ्रॉम मदर विद लव, जैसे कि चैप्टर का टाइटल है. बगैर ओपन किए उसे पता था कि एक पिक्चर फ्रेम है, क्योंकि उसके पास जो पिक्चर फ्रेम था उस पर वो अपनी माँ से मजाक करती थी. कैसे लगता था कि जो फोटोग्राफ है या फ्रेम है कि जैसे मैं कोई फ्यूजिटिव हूँ. फ्यूजिटिव यानी रन अवे हूँ, जो भागी हुई है चेन गैंग से यानी क्रिमिनल गैंग से. और ये मैं जो है ना ये लेके नहीं जा सकती जब मैं स्कूल जाऊंगी नेक्स्ट ईयर अपने साथ ये. और उसने वो पैकेज बैग सूटकेस में वापस रखा और बाकी जो केसेस थे वो क्लोजेट और में ले गई. पुअर डैड, शी थॉट. और वो बड़ी कहते हैं बेचारे डैड, उसने सोचा. शी नेवर न्यू शी कुड हेयर हिम सेइंग, नॉट इवन एट द लास्ट. Minta opened the box beside the bed and took out the sweater and pale green slip. You know perfectly well that you are just exactly, she remembered her mother saying. She never knew. अच्छा मिंटा अपने बाप की तरफ हो के she never knew कि वो नहीं जानती थी. She could hear him saying, not even at the last, जो वो लोगों को बता रहे थे. लेकिन मिंटा को पता था कि उसकी माँ जानती थी कि उसकी डेथ होने वाली है. मिंटा गई. मिंटा ने फिर वो बॉक्स खोला जिसमें स्वेटर और पेल ग्रीन स्लिप थी. और मिंटा को याद आया कि उसकी माँ कहती थी कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो. तो मिंटा ने वो चीज़ें रख ली. She brushed the tears away and went down the stairs out into the cheerless living room. I like to keep these things, Dad, she said in her most matter-of-fact voice, and she showed him the sweater and the slip. The slip is a little big, but I'll grow into it. It looks like her, I think. She went around the room, snapping on the lamps, turning on the television that had been silent for so long. She was aware that his eyes followed her, that he could hardly avoid noticing the tear stains on her cheeks. I think I'll have an apple, she said. Want? He nodded. Sure, bring me as long as you are making the trip. It was natural. It was almost like an old time, except that the blue chair by the fireplace was vacant. उसने वो आंसू हटाए, वो स्वेटर उठाया और स्लिप उठाई. बाकी सामान को उसने पैकेजेस में रख दिया था. वो बड़े मैटर ऑफ फैक्ट यानी जैसे कि अब वो जो है उसने फैसला कर लिया हो. वो नीचे आई. उसने बाप से कहा कि स्लिप और स्वेटर वो रखेगी. स्लिप थोड़ी सी बड़ी है लेकिन वो बड़ी हो जाएगी. और वो फिर गई लिविंग रूम में. उसने लैम्प्स ऑन किए, टेलीविज़न ऑन किया जो कि काफ़ी देर से चुप था. वो जानती थी कि उसके फादर उसे देख रहे हैं, बट वो जो टीयर स्टेन्स थी उसकी आंखों में उसको भी देख रहे थे. वो कहती है कि मैं एक एप्पल खाऊंगी जैसे उसकी माँ खाती है. और वो अपने बाप से कहती कि आप खाएंगे? हाँ, एक ले आओ अगर तुम खुद जाके लेके ला के देती हो. ये सब नेचुरल था, जैसे कि घर में पुराना वक्त आ गया हो. सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस था वो ये था कि वो जो ब्लू चेयर उसकी माँ की थी फायर प्लेस के पास वो वेकेंट थी. वो किचन में गई जल्दी सी. शी वेंट आउट इनटू द किचन हरिडली. Please tell him that I pestered mother to do her shopping early this year, she told herself as she got to the apples from the refrigerator. I'll tell him that it was my idea about the photographs. She wanted him to believe that she didn't know the vitamin pills were pushed back on a shelf. She took them out of the refrigerator and put them on the windowsill where she would be sure to see them in the morning. When she came back into the living room, she noticed that a light in a Christmas wreath was winking on and off in the Kelly's window across the street. वो किचन में गई. उसने कहा कि डैड से कहूँगी कि शॉपिंग के लिए माँ को उसने बड़ा तंग किया था, पेस्टर किया था. पेस्टर का मतलब तंग करना. वो उसने सोचा कि वो
रेफ्रिजरेटर से जब वो एप्पल निकाल ली थी कि मेरा आइडिया था फ़ोटोग्राफ्स का, वो चाहती थी कि डैड को ना पता चले कि शी डिडंट नो, कि माँ को नहीं पता था आखिरी वक्त तक कि वो सख्त बीमार है। वो चाहती थी कि डैड का यही यकीन रहे कि उसकी माँ को नहीं पता था। वाइटामिन पिल्स जो थे वो रेफ्रिजरेटर में थे, वो उसने निकाल के विंडो सिल में रखे ताकि सुबह उसे याद रहे। वो वापस लिविंग रूम में आई कि और बाहर देखा, नोटिस किया कि जो क्रिसमस रेत है, क्रिसमस रेत वो जो पत्तों का वो गोल सा वो डेकोरेशन पीस होता है क्रिसमस के मौका पे, ख़ुसूसन क्रिश्चियंस वो करते हैं, बेलें जोड़ी होती हैं और उसका रथ बनाया होता है, यानी गोल किस्म का ना हार होता है वो, और वो जो है वो विंक कर रहा है, उसमें लाइट्स जो है ना वो ब्लिंक कर रही हैं कैलीस के घर के पास स्ट्रीट में। I guess we should start thinking about Christmas, Dad. She tossed him an apple as she spoke and caught it deftly. She hesitated for just a moment and then walked over and sat down in a blue chair by the fire as if she belonged there and looked across her father and smiled. और फिर उसने बाप से कहा कि हमें अब क्रिसमस के बारे में सोचना चाहिए डैड। उसने वो एप्पल उठाया और उसके बाप ने बड़ी क्लियर अंदाज में उसको क्लैच किया जैसे कि उसकी आदत हो। वो जस्ट थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई और फिर वो गई और ब्लू चेयर जो उसकी माँ की थी उसमें बैठ गई, एज इफ शी बिलोंग देयर, जैसे कि वो वहाँ की ही हो, जैसे वो वहाँ ही बिलोंग करती। और लुक अक्रॉस हर फादर एंड स्माइल्ड, और फिर अपने बाप की तरफ देखा और मुस्कुराई। अब ये ब्लू चेयर वाइटामिन फिल्स और मिंटा जैसे किचन में एक्ट कर रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो कंट्रोल रह रही थी। पहले उसे शॉक लग रहा था, पहले वो सकते में थी शुरू में, फिर उसे रोना आ रहा था, फिर उसने रोना छोड़ दिया, फिर उसने अपने आप को संभालना शुरू किया, फिर उसे जब पता चला कि उसकी माँ को पता था कि वो, तो वो ज़रा रिलैक्स हो गई, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने कोई चोरी की हो माँ को ना बता के। और फिर वो ब्लू चेयर की सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे कि वो अब अपनी मदर की जगह अब हालात को कंट्रोल करेगी, यानी जैसे अक्सर घरों में होता है कि जब माँ फौत हो जाती है तो बहू या बेटी जो है वो घर का कंट्रोल संभालती है। और इस केस में मिंटा को बड़ी अर्ली घर का कंट्रोल, यानी एज अ बीइंग अ वुमन, बीइंग अ फीमेल, उसे घर की सारी जिम्मेदारी उठानी थी जैसे कि उसकी माँ उठा रही थी। सो दैट्स इट, दिस इज़ हाउ द चैप्टर एंड्स एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बड़ा लेंथी था, बड़ा हेक्टिक था, क्योंकि हमने आगे भी काफ़ी काम करना है तो इस वजह से इस पर थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन ये है कि एक लेंथी यूनिट है। एंड इंशाल्लाह इसके नोट्स वगैरह आपके साथ शेयर किए जाएंगे। डोंट वरी अबाउट द नोट्स एंड द क्वेश्चन आंसर्स, आई एम प्रिपेयरिंग देम and they will be shared with you. So we will continue with the poem in the next lecture. So that's for it for today. Thank you very much and Allah Hafiz.